ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਝੂਠੈ ਮਾਨ ਕਹਾਂ ਕਰੈ, ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ। ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਬਿਨਸੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਹ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ, ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ। ਤੇ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ। ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇਕ ਚਿਤ। ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇਕ ਚਿਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਧ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗੇ ਦਬਾ ਲਓ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਮਨ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੀ ਹੀਨ ਮੰਨਣ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਜਾਵੇ। ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ ਵੇਖੋ, ਸੰਕਟ ਨਿਵਾਰ ਵੇਖੋ, ਦੁਰਜਨ ਕੇ ਮਾਰ ਵੇਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਓ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ,
ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ है, एक तो यह गल मन के चलो भी हर बंदे की मत वक्री वक्री है। अज दी नहीं, पुरातन समय तो महाराज बाणी च कहते आप आपनी बुद्ध है जेती बरणत भिन्न भिन्न तोय तेती। पर साडे पंथ विच जदों भी मतभेद हुंदा सी, कोई झगड़ा हुंदा सी ते सिंह गुरु ग्रंथ साहिब की झूरी च बह के उस मसले नूं सॉल्व कर लैंदे सी। आपस में मिसलों का टाइम देख लो, आपस में बड़ियां लड़ाइयां हुई साडी, मिसलों के आपस में बड़े जंग होए होंदे रहे, राज पिछे, इलाके पिछे, हदबंदी पिछे हो जाते सी। जदों अबदाली आउंदा सी सारे इकट्ठे हो जाते सी। जदों अबदाली आउंदा सी, काबल तो तुरदा सी, इन्हां नूं पै जांदा सी हुण आपां उहदे नाल टक्कर लैणी, हुण अपने मतभेद भुला लैणे। पर अज असीं इहो जिहे मतभेद खड़े करते, इहो जिहे शंके खड़े कर लए, इहो जिहियां गल्लां खड़ियां कर लईआं कि साडे अंदर एक दूजी प्रति नफरत, ईरखा, द्वैष साडीआं अखां 'ਚ झलकदी है। जदों महाराज दा हुक्म है कि जे कोई सवेरे या दिने दोपहरी ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ आपसी मतभेद हो जाए, झगड़ा हो जाए, बोल मुकारा हो जाए, रुसल सेवा हो जाए, तो शाम नूं रहरास तो पहला अरदास करा लवे इकट्ठे हो गए। पुरातन पंथ में यह मर्यादा सी भी जे किते आपस हो जाता सी, रहतनामे 'ਚ लिखिया होया है भी रहरास तो पहले इकट्ठे होके भुल बख्शा लो। की पता कल का दिन आना कि नहीं आना। आप कहिए ना भी कल नूं परसों नूं, कल किहने वेखी है। अज अपने को जो समा है हुणे ही इहो जिहे सिंह गुरु की मत अनुसार ही सोच सकते हैं, जिहड़े मन मत अनुसार सोचते कभी नहीं सोच सकते। सो अपने वखरेवियां नूं, अपने मतभेदां नूं कौन छड्ड सकदा, जिहड़ा अपनी ईगो छड्डेगा, अपना हंकार छड्डेगा, अपनी जिद छड्डेगा। जिहड़ा कहता मैं ठीक हाँ बाकी सारे गलत ने, वो कदी इकत्तरता ही नहीं कर सकता, कदी नहीं इकट्ठा हो सकता, कदी नहीं हो सकता। पुरातन समय च सिंह जे अपनी गलती नहीं भी सी होंदी, पंथक एकता लई वो भी कह जाते सी चलो मेरे तो गलती हो गई, पंथ इकट्ठा हो जाए। पर अज गलती करके भी कहते ना मैं ठीक हाँ बाकी सब है नहीं। सो ये चीज़ां अपने विचों कढ़ के ही खालसे का बोलबाला हो सकता। प्यारिओ आप अज सतगुरु 7वें पातशाह महाराज गुरु हरराय साहब जी का गुरता गद्दी दिवस मना रहे हैं। गुरु नानक की गद्दी ते 17 साल रह के सच्चे पातशाह ने बेअंत बेअंत जीवां का उद्धार किया। और औरंगजेब के नाल जिहड़ी साडी टक्कर रही है 4 पातशाहियां के समय की, 4 पातशाहियां औरंगजेब के समय हुई हैं। 7वें पातशाह उन्होंने समय औरंगजेब बादशाह बनया सी, फिर 8वें पातशाह, 9वें पातशाह ते 10वें पातशाह। इसकी सारी शुरुआत गुरु 7वें पातशाह के समय हुई सी। राजसी उथल पुथल हुई सी, उहदे विच महाराज साहब श्री गुरु हरराय साहब जी ने बड़ी दृढ़ता नाल सच का साथ दिता। इसे करके आने वाले समय बड़े उपद्रव हुए सन। तो ऐसे सतगुरु दीन दयाल जी अपने सिखां दे प्रेम भावना श्रद्धा नूं परखण वाले सतगुरु जी। इतिहास में जिक्र आउंदा श्री कीरतपुर साहब विच एक बिरध माता बहुत गरीब, इन्नी गरीबी सी भी एक टाइम रोटी खांदी, एक टाइम पानी पी के गुजारा करने वाली बाहली गरीब, लोगों के घरों में काम कार करके भांडे मांज के वो गुजारा करती सी। पर गुरु महाराज के दर्शन करने लिए 2 टाइम दीवान च जाती सी, कथा सुनती सी, कीर्तन सुनती सी। एक दिन मन में फुरना आया भी मैं गुरु महाराज 7वें पातशाह जी नूं प्रशादा छकावां। संगतां इनकी सेवा करदियां ने, कोई वस्त्र लैके आउंदा है, कोई शस्त्र लैके आउंदा है, कोई घोड़ा भेटा करदा है, कोई माया भेटा करदा है, कोई लंगर विच रसना पसना लिया के गुरु के संगत वास्ते लंगर विच हिस्सा पांदा है। मैं गरीबनी, मैं 2 प्रशादे छका लिया। कई दिन सोचती रही
एक दिन उस माता ने उद्यम किया कि तो ज्यादा काम किया, मेहनत ज्यादा की ते 2 प्रशादियां का आटा जुड़िया, डबल काम करके भी अपने प्रशादे तो इलावा 2 प्रशादियां का आटा जुड़िया। थोड़ा जिहा घ्यो मक्खन कितों लिया, दाल सब्जी नहीं जुड़ी। साध संगत जी, अज सानू शुकराना करना चाहिए भी गुरु ने सानू कोई कमी नहीं छड्डी खाण पीण की, पर असी भुल जाते हैं उन्हां लोकां नूं जिहड़ा ने महाराज सच्चे पातशाह ने साडे तो थोड़ा जिहा नॉर्मल रखिया होया। बड़े कठिन जीवन लोग गुजारते हैं, कईयां नूं कई महीने हो जाते हैं दाल नहीं वेखी, रोटी सुक्की लूण नाल भी खांदे ने। पर यह परमात्मा की खेड है। महाराज के बचन ने बाणी विच भी एक दे खाए निखुटै नहीं, एक नूं खांदिया निखुटदा ही नहीं, ते एक नूं महाराज रुखी रोटी दिंदा है। उहदी खेड है, कर्मां दा भी है, उहदे भाणे की खेड है। कहण लगे माता 2 प्रशादे चोपड़ के बना सकी, सिर्फ 2 प्रशादे, दाल सब्जी नहीं। जिवें आपां लूण वाले परौंठे बना लेते, थोड़ा जिहा लूण पा लिया ते 2 परौंठियां उन्हें तैयार कीतियां, कपड़े च लपेट लईयां ते चल पई गुरु महाराज नूं छकावांगी। उधरों भाणा महाराज का ऐसा भी गुरु आदारी साहब जी अपने 2200 घोड़सवारां नूं लै के रोज शिकार खेडण जांदे सन। घोड़ियां ते सवार होकर सतगुरु शिकार नूं चढ़ पए। ਜਿਹੜੇ बाजार च महाराज आ रहे ने, माई उस बाजार जा रही है। अगे वेख्या गुरु साहब फौजा समेत घोड़ियां ते इन्नी फौज है, इन्नी संगत है, इन्ने निशान ने, इन्ने नगारे ने, राजियां बादशाह वाला ठाठ है, ते गुरु साहब जा रहे ने। ये किहड़ा टाइम महाराज ने मेरे तो प्रशादा नहीं छकना, मेरे कर्मां च सेवा कोई नहीं। निराश हो गई। गली दे एक खुंजे विच उसे पासे साइड ते होके खड़ गई भी मेरे कर्म गरीबनी ने कित्थे ने, गुरु साहब तो चले ने, इन्हां ने हुण कित्थे प्रशादा छकना। घोड़े ते चढ़े 7वें पातशाह महाराज लगातार तेज तेज तुरदे आ रहे ने, घोड़े दगड़ दगड़ करते। जदों माई दे कोल पहुंचे एकदम घोड़ा रोक लिया। घोड़ा रोक के सच्चे पातशाह माई वाल मुंह करके घोड़ा मोड़ के कोल चले गए। भाई साहब संतोख सिंह जी कविराज बड़े सुंदर छंदां च लिखते हैं, फिर तुरंग निकटते सगमने अंतर जामी करो उचार। तुरंग कहते हैं घोड़े, घोड़ा फेर के निकटते सगमने माई दे निकट चले गए। अंतर जामी करो उचार, अंतर जामी पातशाह बोले हमको छुदा लगी देव माई, त्यार आहार जो तैं करता। माता सानू भुख लगी, जेड़े तेरे हाथ 2 प्रशादे ने सानू दे दे छक लईए। माई सिर तो लैके पैरों तक शुकराने नाल भर गई ते कंबदे हत्थां नाल गरीबणी ने सतगुरु नूं 2 प्रशादे फड़ाए। घोड़े दे उत्ते बैठे हुए उस तरह बिना हथ धोंदिया ही, हथ भी नहीं धोए ते प्रशादे लैके बड़े स्वाद नाल महाराज 7वें पातशाह छकण लग पे। प्रशादा छकी जाते तो कहते माता बड़ा स्वाद बनाया लंगर, बड़े वधिया बनाए प्रशादे तू तो। माई बड़ी खुश हो रही है। माई दे मेहर की निगाह करके पातशाह शहर शिकार नूं चले गए। सिंह नाल 2200 घोड़सवार वो भी चले गए, वापस आए। सिखां दे मन च एक शंका आ गई। शंका आया क्योंकि इंसान का मैं पहला बेनती की, जिन्ने बंदे ने दुनिया के उन्ने ही दिमाग ने, उन्नी ही सोचा ने। सारी दुनिया की सोच नूं आपां इक्को जिहा नहीं बना सकते। अपने परिवार के 4 जी होंदे ने, उन्हां दी सोच नहीं रलदी। सारी दुनिया की तो क्या रलावांगे। कुछ सिख इहो जिहे भी सन जिन्हां दे दिमाग च इह गल आ गई भी सच्चे पातशाह की उम्र जवानी दी है, जवानी की उम्र च भुख बड़ी लगती, बेटा ज्यादा काम करता, जवानी च भुख ज्यादा लगती। फिर
घोड़े ते चढ़न वाले नूं दुगनी भुख लगदी है। ये तुसीं तजर्बा कर लो। आम आदमी नॉर्मल जिहड़ा बैठा रहिंदा कुर्सी ते उहनूं भुख अद्धी लगदी है, जे कोई घोड़े ते चढ़े उहनूं दुगनी लगदी। बड़ा फर्क है, क्योंकि वह शरीर बड़ी छेती हजम करता। महाराज घोड़े ते चढ़ते ने, उन्होंने भुख लग जाती। एक इन्हां दी उम्र जवान है सतगुरां दी, एक इन्हां नूं घोड़े करके भुख लगदी है। ते गुरु साहब अज देखो साडे हुंदिआं सौंदिआं साडे गुरु नूं एक बुढ़ड़ी माई कोल रोटियां मंग के खाणियां पईआं। दिमाग का कोई पता किधर नूं घुम जावे, सिखां दा घुम गया। कहते गुरु नूं रोटियां मंग के खाणियां पईआं, साडे हुंदिआं है ये नहीं हो सकता। कल नूं आपां प्रशादा नाल लैके चलिया करिए, महाराज नूं उत्थे प्रशादा छकाया करिए घोड़े ते। उन्हां सिखां ने वधिया वधिया सब्जियां दालां बनाईयां, वधिया वधिया पकवान बनाए, प्रशादे बनाए, गड़वे नाल जल दे भर ले, तौलीए लै ले नाल, पूरा साजो समान। महाराज शिकार नूं चढ़े नाल लैके तुर पे। जदों सतगुरु जी थोड़ा जिहा बाहर गए तो महाराज का घोड़ा घेर के कहते महाराज जी लंगर छक लो, महाराज हाथ धो लो, महाराज जी तौलिया। वो सारे आले दुआले घेर के महाराज हैरान होकर देखते उन्होंने वाल भी इन्हों की हो गया, चंगे भले अज इन्हों की होया। मेरे पातशाह जो बचन बोले कविराज भाई संतोष सिंह ने बड़े सोहने लिखे। सुन सत गुर हर खाए बखान्यो, बेमर जाद आहार त्यार, चढ़े जात अब घोड़े ऊपर, कौन समो तुम करो विचार। महाराज के हस पे कहते हो कमले होए हो, असी घोड़े चढ़े जाने आ, घोड़े से रोटी खाने का कोई टाइम होंदा। सोच जो तो होए पुनीत असन जब, उचित अचन के तब मेरे तार। पवित्रता न बनया होवे, गुरसिखा ने साफ सफाई न बनाया होवे, हाथ पैर धोते होण, स्नान कीता होवे, पवित्रता नाल चौंके च बह के सुचम नाल लंगर छकीदा। असी पैरी जोड़ा पाया, हाथ च असी घोड़े दीयां लगामां फड़ियां ने, तुसीं कहंदे हो प्रशादा छको। सिख चुप कर गए। पातशाह खेड़ के शिकार वापस आए, दीवान सजिया, संगतां बैठ गईयां। उन्होंने सिखां ने बेनती की, महाराज एक बेनती करनी, जे अज वर्गे होंदे तो शायद घोड़े ते कोल ही सवाल कर देंदे, माफ करना। जे अज वाले होंदे ने जिहड़े अज ने, कोई पता नहीं सवाल कित्थे करना, किवें करना, की पुछना की नहीं पुछना, सीधा ही बस डांग सोटा चलाते। ये चीज़ां साध संगत जी सिखणियां पैंदियां। सवाल भी पुछना उसका तरीका होंदा है, गल करन दा कोई तरीका होंदा है, सवाल भी दा ते जवाब दा भी। इस तरीके सतपुरुषां महापुरुषां गुरमुखां की संगत चों मिलते हैं। अजकल के स्कूलों कॉलेज यूनीवर्सिटी च नहीं मिलते, माफ कर देना। जिहड़ियां वो चीज़ां ने वो सानूं उन्हां पुराणियां गुरसिखां तो मिलणगीਆਂ। सतगुरु पातशाह के दीवान च बैठ गए, महाराज सज गए, हाथ जोड़े, गरीब नवाज एक सवाल पूछना है, सवाल पूछण की भी आग्या लैनी पैंदी। महाराज कहते हाँ भाई पूछो, जो पूछना असीं जानते हैं, तुसीं पर पूछो। तो कहते महाराज पूछना यह है, एक माई पाटे पुराने कपड़े पाए, पता नहीं उन्हें स्नान किया नहीं किया, भांडे मांजे ने नहीं मांजे, उस माई नूं सुचम दा पता है कि नहीं पता? उस माई दे कोलों गली विच खड़ी माई कोलों हजूर आप जी ने घोड़ा रोक के प्रशादे मंगे। माई सानूं भुख लगी है प्रशादा दे, फिर आप जी ने हाथ नहीं धोए, आप जी ने पैरों से जोड़ा भी नहीं लाया, उसे हाथ में तुहाडे घोड़े दीयां लगामां सन, उसे हाथ तुसीं प्रशादा रखिया सी ते बड़े आनंद नाल छक रहे सी। कहंदे माई सानूं भुख लगी पर तेरा प्रशादा बड़ा स्वाद है, बड़ा आनंद वाला। ते महाराज माई नूं निहाल करके तुसीं चल पे
ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੁੱਚਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੱਥ ਵੀ ਗੜਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧੁਆਉਣ ਲਈ, ਤੌਲੀਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੇਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ? ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਥੋੜਾ ਛਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕੀਦਾ, ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁੱਚਮ ਨਾਲ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕੀਦਾ, ਮਾਈ ਦਾ ਕਿਉਂ ਛਕ ਲਿਆ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਈ ਪ੍ਰੇਮਣ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨੇਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੇਮ, ਕਾਨੂੰਨ, ਧਰਮ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਲਾਓ ਰਹੁ ਰੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੇਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਈ ਪ੍ਰੇਮਣ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਮੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਚਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟਣਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 14 ਮਾਰਚ 1 ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਲੁੰਡੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਠਾਨ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀਗਾ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਐਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨੋ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਰੋ ਕੋਰੜੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਚੱਕ ਕੇ ਨੰਗੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਲਓ ਮਾਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਜੂਝੇ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਪਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਜੇ। ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਪਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ 5ਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਵਿਵੇਕਸਰ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬੁੰਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਬੁੰਗਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ 1 ਚੇਤਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ
साल की आरंभता की। चेत गोबिंद आराधीऐ होवे आनंद घना। शेरे पंजाब ने महाराजा रणजीत सिंह जी ने अकाली फूला सिंह की प्रेरणा नाल संमत शुरू किया सी नानकशाही। तुसीं पढ़ लो, सिक्का जिहड़ा खालसे दा चलाया सी वो नानकशाही सिक्का चलाया सी। हुण भी किते किते ओहदियां पुरानियां मोहरां सानूं मिलदियां। दास ने एक जगह दर्शन किए, नानकशाही सिक्के ने उत्ते महाराज गुरु नानक देव जी भाई बाले मरदाने की फोटो होंदी सी, थल्ले लिखिया होंदा सी नानकशाही सम्मत, जिन्ना भी होंदा सी जिहड़े साल वो चलाया सी, उहनूं नानकशाही सिक्का कहंदे। सो अपना सम्मत, अपना सिक्का, अपना राज, अपना ताज, ये कलगियां वाले गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह की सानूं बख्शिश है। सो अपना साल शुरू होया। आओ हुण कुछ समय लई मन बिरतियां नूं एकाग्र करिए। गुरु दरबार विच कुछ दिन पहलां तो गुरु संगत ने हुक्म लाया सी बई गुरु तेग बहादुर साहब जी के जिहड़े सलोक हैं आपां जदों भी भोग पैंदा है वो सुणदे। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जदों दिल्ली कोतवाली च बैठे हुए सन, शहीदी तो कुछ दिन पहलां ये सलोक लिखे सन। इन्हां सलोकां च वैराग, प्यार, त्याग, भगति, ज्ञान सब दिता है। आओ महाराज की प्रेरणा दे रहे ने, सुनिए। सारी संगत आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। झूठै मान कहा करे, जग सुपने ज्यों जान। महाराज कहते हे झूठे बंदे, किहड़ी चीज़ का अहंकार करदा है, किहड़ी चीज़ का तू मान करदा है? अपनी जवानी का मान करदा है, अपनी सुंदरता का मान करदा है, अपनी अकल का मान करदा है, अपने पैसे का मान करदा है, अपनी जाति का मान करदा है। कुछ भी तेरा मान सच्चा नहीं, क्योंकि जिहड़ी दुनिया च तू रह रहा है वो सुपने की तरह है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिहड़ी दुनिया च तू रह रहा है तो सारा कुछ ही सुपना है। गुरु नानक देव जी कोलों सिखां ने एक सवाल पूछे, महाराज आप जी कहते हो माया झूठी है, सारी बाणी कहती माया झूठी, ते महाराज माया बिना गुजारा भी कोई नहीं। ये सवाल आप भी कर सकते हैं कि सारों ने साझा सवाल है भी जिहड़ी चीज़ झूठी है, तुसीं कहंदे झूठी है, फिर उहदे बिना एक टाइम एक मिनट नहीं लंघदा। इस बिन सरे ना एक छिन पूर्ण होत ना काम। माया तो बिना एक पल नहीं लंघदा, एक टाइम एक मिनट नहीं लंघदा। काम कोई नहीं, पूरे सारे काम रुक जाते हैं, सिस्टम ही बंद हो जाता सारा। रोटी भी खानी, कपड़ा भी पाना, बंदे ने मकान भी चाहिए, बाल बच्चे भी पालने ने, आना जाना भी है, गड्डी का किराया चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप जी कहते हो माया झूठी है तो फिर दे बिना गुजारा नहीं होंदा। जिहड़ी चीज़ बिना गुजारा नहीं होंदा उन्हें झूठी किवें कहते हो? सवाल देखो कितना दे अजकल के साडे सवाल ही बड़े ना नीवी पद्धर दे हो गए। होर कोई नहीं, कोई सवाल पूछणगे मीट खा लेना चाहिए कि नहीं खा लेना चाहिए। विज्ञानी जी सानू सर्टिफिकेट लिख के दे देण ते असीं पतीला धर लईए जाके। ये कोई सवाल ने? जिहड़े सवाल पूछण वाले वो पूछो, ये आत्मा आई कित्थों है, ये आत्मा ने जाना कित्थे है, ये पसारा की है, ये दुनिया की है, कहाँ ते आवे कहाँ ए जावे। गुरु ग्रंथ साहब च सवाल भी लिखे ने, जवाब भी लिखे ने, वो नहीं कभी पढ़े। कहाँ ते आवे कहाँ ए जावे, कहाँ ए रहे समाई, ये की चीज है? मैं की हाँ? आत्मा किस नूं कहंदे ने? बुद्धि की हुंदी है? ये कभी असीं नहीं गल छेड़ी। बस पुठियां सीधियां कड़ा सज्जे हत्थ च पाना चाहिए कि खब्बे च पाना चाहिए, ये गल्लां पुछणगे। मूल मंत्र नानक होसी भाई सच ते करिए कि गुर प्रसाद से पढ़ना कोई भी नहीं, गल्लां ही करनी। मैं कहना जिन्ना पढ़े जाता पढ़ते लो, जपते लो, जिन्ना जपोगे उन्ना ही पता लग जाएगा।
गल्लां करिया कुछ नहीं। खांड खांड कहे जेबा ना स्वाद मीठो आवे। खंड 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 सारा दिन करो, मूँह मिठा नहीं होना, खाना पैना मिठा। मूल मंत्र पढ़ना पैना, मूल मंत्र जपना पैना, फिर गल बननी है। तो जे आप कहीए भी मूल मंत्र कितों तक होंदा है, वो कोई कोई गुरप्रसाद ने कही जाए, कोई नानक उसी साज तक लड़ी हो, सारी जिंदगी कख नहीं, कोई फायदा नहीं होना। खांड खांड कह जेबा ना स्वाद मीठो आवे। दरब दरब कह को दरब ना विलास है। चंदन चंदन कह प्रगटै ना सुबास बास। अगन अगन कह सीत ना विलास है। चंदन 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 कहने नाल खुशबू नहीं होनी, चंदन दे कोल जाना पैना। अग 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 कहने नाल ठंड दूर नहीं होनी, अग बालनी पैनी है। इसे तरह गुरमंत्र मूल मंत्र गुरबाणी जपनी पैनी। सो साध संगत जी रहो विचार। सच्चे पातशाह के सिख सवाल बड़े महंगे करते सी, क्योंकि उस जिमें नर्सरी का विद्यार्थी सवाल नर्सरी की पद्धर का करेगा, MA का विद्यार्थी MA की पद्धर का सवाल करेगा। जिहड़ी उहदी योग्यता है उन्ना ही करेगा। उन्हां सिखां दी योग्यता सी अध्यात्म वाले पासे, साडी योग्यता है पदार्थां वाले पासे। माफ कर देना, अज साडी बाहरमुखी बिरती है। सिखां ने पुछया गरीब नवाज, कहंदे ओ माया झूठी है, गुजारा तेरे बिना हुंदा कोई नहीं। जिहदे बिना गुजारा नहीं होंदा उहनूं झूठी क्यों कहंदे हो, किवें कहंदे हो? महाराज गुरु नानक साहब कहंदे सुनो, कहंदे कोई बंदा रात नूं पलंग ते सुता पिया, पलंग ते सुता आराम नाल, उहनूं सुपना आ गया कि सारे पासे पानी 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 पानी, फ्लड आ गए ने, हड़ आ गए ने। सुपने में जो बंदा उस पानी च घिरिया डुब रहा ते हथ मार रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। ओदी आवाज़ सुन के कोई मलाह बेड़ी लैके किश्ती लैके आ गया। उन्हें उन्होंने फड़ के अपनी किश्ती च बहा लिया सुपने में। फिर उन्हें उन्होंने उस पानी चों कढ़ के बाहर किते सुक्की थां ते अपड़ा दिता। उस तो बाद उस मलाह नूं उस बंदे ने अपनी जेब चों कढ़ के कुछ पैसे दिते ने, भाड़ा दिता, किराया दिता कि तू भाई मेरी जान बचा ली है, आ ले 10 रुपये 20 रुपये, आ टैक्स एक अपना किराया कर। महाराज कहते दसो वो जिहड़ा पानी सी वो की सी? सुपना। जिहड़ा वो डुब रहा सी, वो डुबना काहदा सी? वो भी सुपना, झूठा। जिहड़ा वो मलाह आया वो की सी? वो भी सुपना। जिहड़ी वो बेड़ी लाया वो भी सुपना। जिहड़ा उहनूं कढिया बाहर उन्हें पानी चों वो भी सुपना। ते जिहड़े पैसे दिते ने सच्चे किवें हो गए? आखो सी भाई। मेरा ख्याल दोबारा दसना पैना, कईयां दा ध्यान उहदा हो जाता। महाराज कहते भी जिहड़ा किश्ती दे विच उहनूं बिठाना है, बाहर कढना है, बचाना है, वो सारा सुपना है। ਉਹਦਾ डुबना भी सुपना, ਉਹਦਾ तरना भी सुपना। ते ਜਿਹੜੇ पैसे दिते ने, ਜਿਹੜੇ पैसे दिते ने वो की ने? फिर वो सच्चे ने? वो भी सुपने दे ही ने। दुनिया दियां सारियां समस्यावां जिन्हां ते असीं कहने हम जिन्ना सरदा नहीं, वो भी सुपना ही है ना। माया झूठी है। जेड़े कामां लई माया वरतने वो काम भी झूठे ही ने। सुपना देख रहे हैं, ज्यों सुपना अर देखना ऐसे जग को जान। इनू समझ लो गल, थोड़ा ध्यान दे के साधना करके ये गल पल्ले पे। महाराज कहते झूठे मान कहाँ करे, जग सुपने ज्यों जान। झूठे बंदे काहदा मान करता है? जगत नूं सुपने की तरह जान लै। इनमें कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। ये जिन्होंने तू कहना ये मेरे हैं,
ये जी परिवार माँ प्यो भैन भरा धीआं पुत्र पत्नी मेरे हैं, ये भी तेरे कोई नहीं। ये पूर्व जन्म के मिले संजोगी, जिन्ना जिन्ना किसी का लैन देन है तेरे को इकट्ठे होए ने। किसी ने 20 साल नाल रहना, किसी ने 50 रहना, किसी ने 30 रहना, किसी ने 35 रहना, किसी ने 1 रहना, किसी ने 2 रहना। वो जिन्ना चिर संजोग है वो लैन देन करके आपो अपने राह पै जाते। नदी नाम संजोगी मेले, किश्ती च बह के 150 बंदा इकट्ठा नदी टपदा, उत्थे सारे इकट्ठे होंदे, अगे पिछे आपो अपने राह पै जाते। इत्थे आपां सारिਆਂ ਦਾ टाइम है, इन्ने टाइम ਲਈ इकट्ठे होना विछड़ गए। कई साडे बचपन साथी सी अज सानूं भुल ही गए, कई जवानी च साडे साथी बने, बुढ़ेपे च विछड़ गए। ये कोई जरूरी नहीं सदा कोई नाल नहीं रहिंदा। सपाई इन मैं कुछ तेरो नहीं, इन्हां च कुछ भी तेरा नहीं, मकान तेरा कोई नहीं। जिथे अज साडा मकान है इत्थे 50 साल पहला कोई होर रहिंदा होना, 100 साल पहला कोई होर। जिथे साडा हल वगदा खेतां 'च, इन्हां खेतां 100 साल पहला पता नहीं किहदा हल वगदा सी, ते आउण वाले 150 साल नूं पता नहीं किहदा हल वगेगा। जिथे जिहड़ी दुकान ते असीं बह के काम कर रहे हैं, कोई साल बाद पता नहीं कौन करेगा। इत्थे कुछ भी तेरा नहीं, नानक कहो बखान। ये गल गुरु तेग बहादुर साहब जी बखियान करके कहते हैं। गर्भ करत है देह को, बिनसै छिन में मीत। सब तो ज्यादा अहंकार बंदा अपनी देह का करता। मैं बड़ा सोहना, मैं बड़ा तगड़ा, मैं सारे तो तक बलवान हाँ, मैं लम्मा हाँ, मैं मोटा हाँ, मैं उच्चा हाँ, मैं सोहना हाँ। इदा अपने शरीर का मान करता, शीशे सामने अपने शरीर में ही देखता रहता। महाराज कहते ये देह तो एक पानी के बुलबुले तो भी पहला खत्म हो जाती। बिनसै छिन मैं भी यही आप कहते आओ। सामी मिलिया सी मैनू, कहते ठीक ठाक सी, हुण की हो गया? 2 मिनट पहला ठीक सी, कहते अगले पल छिन अख के फरकण विच जिहड़ी चीज बिरस जानी है वह काहदा हंकार करता। जे प्राणी हर जस कहियो, नानक तेह जग जीत। जिस प्राणी ने वाहिगुरु का हरि का जस किया है, सिमरन किया है, महाराज कहते समझो उन्हें अपना जग इस संसार से आना सफल कर लिया। उन्हें संसार नूं जित लिया। ये संसार किसी तो नहीं जितया गया, संसार किसी तो नहीं जितया गया। गुरमुख जित जाते हैं, हार चले गुरमुख जग जीता। पहला हार जाते हैं, कहते असीं हार गए, हार जाते हैं। दुनिया भी कहती है तो हारे हुए ने, ये तो एवं ही ने, ये तो बेचारे सिद्धड़ जे ने, इन्होंने तो गल नहीं आती, तो भोले बंदे ने। दुनिया उन्होंने फाड़ी कर देती है, पिछे कर देती। वो जिहड़े दुनिया वालों फाड़ी होंदे ने ना, परमेश्वर उन्होंने अगे कर लेंदा, जित लेंदे ने बात। ये गल भाई गुरदास जी लिखते हैं, जिन हार है जिन्हें ये गुरमुख चाला। जितन वाले हार जाते हैं, जिहड़े दुनिया 'च बड़ियां तरक्कियां कर रहे हैं। आहा मैं जी एडा वड्डा बन गया, मैं बन गया, मैं वह बन गया, सिकंदर बादशाह वर्गे जितते फिर दुनिया नूं, अंत नूं हार के चले गए। चले जुआरी दोए हाथ चाड़ गए। जिहड़े जितते ने वो हार जाते हैं, वो जिहड़े हारते हैं वो जित जाते हैं। तर डुबै डुबा तरै पी पिरम प्याला। वो तरन वाले डुब जाते हैं, डुबण वाले तरते। आम कहावत है भी तारों ही डुबते, जेड़े बेचारे ने नदी च वड़ना ही नहीं उन्हें की डुबना। जेड़ा तरेगा नदी च वही डुबेगा। ते डुबा तरै ये तुसीं सारे जानते हो। जेड़ा बंदा डुब जाता, तीसरे दिन डैड बॉडी उपर तरन लग जाती है, तीजे दिन लाश उत्ते तरन लग जाती, फिर डुबदा कोई नहीं। इदा गुरमुख संसार वालों डुब के थले चले जाते, फिर उपर हो जाते हैं। जेड़े उपर होंदे ने वो थले चले जाते। तर डुबै डुबा तरै पी पिरम प्याला। जिन हारै हारै जिन्हें ये गुरमुख चाला। भाई साहब गुरदास जी ने जिहड़े बचन लिखे ने, इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब कहते नानक ते जग जीत, उन्हें जग जित लिया। जे घट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान। जिहदे हिरदे विच वाहिगुरू दा परमेश्वर दा सिमरन है, वो समझो मुक्त है, वो जिउंदे ही मुक्त है। तेह नर हर अंतर नहीं, नानक साची मां। उस बंदे विच ते रब च फर्क नहीं है।
ये गल सच्ची जान लो। हर जन दोए एक है, बिब विचार कछ ना है, संत भगत परमेश्वर का ही रूप हैं। कहो कबीर आप तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारे पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सकै पछाने। इदा परमेश्वर का ही रूप है। तेह नर हर अंतर नहीं, अंतर का समझ रहे हो फर्क, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ फर्क नहीं कोई रहता। तेह नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान, ये गल सच्ची मान लो। एक भगत भगवान, जिह प्राणी कै नाहे मन। जिस बंदे दे मन च उस परमेश्वर की भगती नहीं है, जैसे सूकर सुहान, नानक मानो ताहे तन। वो बंदा नहीं, वो इंज समझ लो ਉਹਦਾ शरीर है जिवें कुत्तियां दा हुंदा जां सूरां दा हुंदा। जैसे सूकर परमेश्वर की भगती तो बिना जिन्ना मर्जी कोई सोहना बनया फिरे, साध संगत जी जिन्ना मर्जी कोई ताकतवर बनया फिरे, महाराज गुरु तेग बहादुर साहब के कागजां च सूर है ते कुत्ता है। जैसे सूकर सुहान, नानक मानो ताहे तन। ਉਹਦਾ शरीर इदां दा मान लो। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित। सिखा ने फिर पूछा भाई मती दास जी ने, गरीब नवाज जी परमेश्वर की भगती किवें करिए, किस तरह वाहिगुरु मिलेगा? महाराज कहते भाई मती दास, जिवें कुत्ता अपने मालक का बूहा नहीं छड्डदा। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित। ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀਰਜ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀਰਜ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ, ਇੱਕ ਵਡਾਈ ਦੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੱਕਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੋਗੇ, ਜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਧੱਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਝਿੜਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਥੋੜਾ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਧਾਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨਿਆਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। गुरु साहब कृपा करन, ये भजन हृदय च बसन, ये लोक सुखीए परलोक सवेले बन जाइए। भुल्लां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।